شادی کی پہلی رات کسی نے میرے شوہر کو زہر دے دیا اور میرا شوہر مر گیا۔ سب نے الزام مجھ پہ ڈال دیا اور مجھے جیل بھیج دیا۔ میں حسین تھی، جیل میں میری عزت لٹ گئی۔ جب میں باہر نکلی تو گھر والوں نے بھی نہیں اپنایا۔ میں سڑک پہ بیٹھی رو رہی تھی جب ایک فقیر بولا مجھ سے نکاح کر لو۔ میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں شادی کر کے جو ہی اس کے ساتھ گئی تو سیج پر بیٹھتے ہی میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ میں دلہن بنے عروسی لباس میں ملبوس گاڑی کی طرف جا رہی تھی۔ مجھے کچھ ہوش نہیں تھا کہ مجھے گاڑی کی طرف کون لے کے جا رہا ہے۔ ماضی کا ایک ایک پل میری آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا تھا۔ زندگی میں ویسے بھی بہت دکھ موجود تھے اور اب جب مجھے لگا کہ زندگی آسان ہونے لگی ہے تو نہ جانے دل خالی خالی محسوس ہونے لگا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے سب کچھ ختم ہو گئے، جبکہ ابھی تو میری نئی زندگی کی شروعات ہوئی تھی۔ آج میرا نکاح تھا اور میرا نکاح ایک فقیر سے ہونے جا رہا تھا۔ جیل سے نکلتے ہی مجھے اس فقیر نے نکاح کی پیشکش کی تھی، جسے میں جانتی تک نہ تھی۔ ہاں البتہ اسے ایک دو بار میں نے گھر کے راستے میں دیکھا ضرور تھا۔ جیل سے نکلتے وقت میرا دماغ سن ہو رہا تھا اور سر چکرانے لگا تھا۔ ایسے میں جب اس نے مجھے شادی کی پیشکش کی تو میں نے کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر ہاں کر دی، اور اب میرا دل سوکھے پتے کی مانند لرزنے لگا۔ اگر میرا یہ فیصلہ غلط ثابت ہو گیا تو میں کیا کروں گی؟ گھر والوں نے تو ویسے بھی مجھے قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ ان کے نزدیک میں ایک قاتلہ تھی اور اپنی مدت پوری کرنے کے بعد قتل ثابت نہ ہونے کی وجہ سے جیل سے باہر تو آ گئی تھی، لیکن اس کے بعد بھی میری زندگی جیسے کانٹوں پہ چل رہی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری ہنستی کھیلتی زندگی میں ایک دن ایسا بھی آئے گا جب میں اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ایک اندھیری جیل میں بند ہو جاؤں گی اور اس سے نکلنے کا راستہ نہ ہوگا۔ وہاں اللہ سے گھڑ گھڑاتے ہوئے دعائیں مانگ مانگ کر بالآخر مجھے آزادی تو مل گئی تھی، لیکن لوگوں نے ابھی بھی مجھے قید کیا ہوا تھا۔ میں زندگی سے تھک چکی تھی، چاہتی تھی مجھے موت آ جائے، لیکن موت بھی مجھے آ کے نہیں دے رہی تھی۔ ایسے میں جب اس فقیر نے جو مجھے راستے میں اکثر ملا کرتا شادی کی پیشکش کی تو میں رہ نہ پائی اور میں نے فوراً سے ہاں کر دی، اور آج میرا اس سے نکاح ہو چکا تھا۔ لیکن دل کافی ڈرا ہوا تھا۔ مجھے گاڑی میں بٹھا کے لے جایا جانے لگا تو میں حیران رہ گئی، بھلا فقیر کے پاس گاڑی کیسے آ سکتی ہے؟ اس کے پاس تو گاڑی نہیں ہونی چاہیے۔ وہ جس علاقے میں گاڑی جا رہی تھی وہ علاقہ میرا جانا پہچانا تھا۔ ذہن پر بہت زیادہ زور دینے کے باوجود بھی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ شاید میری یادداشت بھی جیل میں رہ رہ کر کمزور ہو چکی تھی۔ میں نے ہر فکر سے خود کو آزاد کرنے کی کوشش کی اور سر جھٹک کر گاڑی کی سیٹ پر اپنا سر ٹکا دیا۔ اب کچھ بھی فائدہ نہیں، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اگر میرے حق میں فقیر بہتر ہوا تو ٹھیک، ورنہ جس طرح زندگی کے دوسرے دکھ میں نے سہ لیے یہ دکھ بھی سہ لوں گی۔ گاڑی انجان رستوں پہ چلتی رہی جہاں تک کہ ایک جھٹکے سے ایک بڑے سے گھر کے سامنے رکی تو میں حیران رہ گئی۔ میں نے فوراً گاڑی سے اترنا مناسب سمجھا۔ میرے شوہر میرے ساتھ موجود نہیں تھے۔ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ تمہیں گھر پہ ملوں گا، تم بس دلہن کا لباس پہن کر مولوی صاحب کو اپنا حجاب قبول ریکارڈ کروا کر بھیجی گئی گاڑی میں بیٹھ کے آ جانا۔ اور میں نے اس وقت ان سے کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ جیسے ہی گھر کے اندر قدم رکھا تو میری آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئی۔ میں ٹکر ٹکر وہاں موجود تمام چیزوں کو دیکھنے لگی جو اپنی مہنگی ہونے کا چیخ چیخ کر اعلان کر رہی تھی۔ ہر چیز اپنی جگہ انتہائی اہمیت کے حامل تھی اور کافی حد تک شاہانہ طرز زندگی کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ میرا دل بیٹھتا چلا گیا، یعنی کہیں اس فقیر نے مجھے کسی امیر زادے کو بیچ تو نہیں دیا۔ میں اتنی بیوقوف کیسے ہو سکتی ہوں؟ میرا دل چاہا میں الٹے قدموں واپس لوٹ جاؤں اور پھر کبھی دوبارہ جہاں نہ آؤں۔ میں ویسے ہی دھوکہ کھا چکی تھی، اپنوں نے مجھے چھوڑ دیا تھا، پر اب میرے پاس اور کوئی چارہ نہ تھا۔ میں ہمت کر کے قدم آگے بڑھاتی رہی، یہاں تک کہ مجھے ایک ملازمہ نے آ کر ہاتھ پکڑ کر میرے کمرے تک پہنچا دیا۔ یہ گھر مجھے جانا پہچانا لگنے لگا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میں یہاں پہلے بھی آ چکی ہوں، یا شاید یہ میرا وہم تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں وہاں بیٹھی کمرے میں اپنے شوہر کا انتظار کرنے لگی۔ تقریباً 2 گھنٹے ایسے ہی گزرے۔ اب میرا دل بیٹھا چلا جا رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اٹھ کر باہر نکلتی، کسی کھڑکی کی آواز میں سمجھ گئی کہ میرا شوہر اندر داخل ہوا ہے۔ گھومنے کی آواز آئی، دروازہ کھلا اور پھر بند ہوا۔ میں نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو اپنی جگہ پتھر کی ہو گئی۔ میرے سامنے جو شخصیت موجود تھی وہ ہرگز فقیر تو نہیں تھا۔ پھر میرے نکاح کس سے ہوا؟ میں نے اپنے ذہن پر زور دے کر اپنے شوہر کا نام یاد کرنے کی کوشش کی۔ میں زندگی سے اس قدر بیزار ہو گئی تھی کہ نکاح کے وقت میں نے اپنے شوہر کے نام پہ توجہ بھی نہیں دی۔ میں تو اس سہارے کی تلاش میں تھی اور بس وہ مجھے سہارا چاہیے، جھونپڑی میں رکھے یا محل میں، مجھے اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ پر اب میری برداشت کی حد ختم ہو گئی۔ میں ایک دم سے اپنی جگہ کھڑی ہو کر سامنے موجود شخصیت کا چہرہ دیکھنے لگی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میرے شوہر کہاں ہیں؟ انہیں بلاؤ، میں تمہاری شکل تک نہیں دیکھنا چاہتی، میں نے چلا کر کہا۔ تو پہلے تو میرے شوہر کی آنکھوں میں حیرت ابھری اور پھر اس کے بعد اس نے
ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए मेरी तरफ देखा। क्या हुआ हो गया है तुम्हें? मैं ही तुम्हारा शोर हूँ, क्या तुम मुझे भूल गई हो? जब मैं इस दिन पहचान में नहीं आ रहा था। अपने शोर का सवाल सुनकर मुझे ऐसा लगा सातों आसमान अपनी कुव्वत के साथ मेरे ऊपर आ गिरे हों और मैं किसी काबिल नहीं रही हूँ। मैंने रोते हुए आंखें उठाकर अपने शोर की तरफ देखा। खुदा का वास्ता है, मुझे आज़ाद कर दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, तुम मेरी खुशियों के कातिल हो। तुम ही वो शख्स हो जिसने मुझे एक ऐसी ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर कर दिया जो मैं बिल्कुल डिज़र्व नहीं करती थी। तुम्हारी वजह से मेरा सब कुछ छीन गया। अब मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में कैसे शामिल कर सकती हूँ? मैं वहीं ज़मीन पर बैठती चली गई। मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई और मेरे लिए खड़ा होना दोबर हो गया। मेरा सर चकराने लगा। मैंने बेख्तियार सीने पे हाथ रखा। धंधलाती हुई निगाहों से जो आखिरी मंजर मैंने देखा था वो मेरे शोहर का मेरी तरफ बढ़ना था, जिसे मैं अपना शोहर मानने के लिए तैयार ना थी। इसके बाद मेरा ज़हन अंधेरे में डूब चुका था और मुझे कुछ याद नहीं रहा था। मेरा नाम बेनिश है और ये मेरी ज़िंदगी की इंतहाई तलख़ हकीकत है जिससे मैं आज तक नज़र चुराती आई हूँ। लेकिन अब मैं थक चुकी हूँ और चाहती हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाए, पर मुझे कोई उम्मीद नज़र नहीं आती कि मेरी ज़िंदगी में अब सब कुछ पहले जैसा हो सकता है। मैं अपने वालिदैन की सबसे छोटी बेटी थी। वालिदैन ने इंतहाई लाड प्यार से पाला। घर में दौलत की रेल पेल थी। मुझे पढ़ने लिखने का बहुत शौक़ था, इसीलिए मैंने कॉलेज में दाखिला ले लिया था। इससे पहले मेरी दोनों बहनों की मैट्रिक के बाद ही शादी हो गई थी। मेरा एक ही भाई था जो अम्मी अबू का लाडला था और फिर इसके बाद मैं पैदा हुई। इसी वजह से मुझे भी इसके बराबर प्यार मिला था। ज़िंदगी बिल्कुल ही शहज़ादियों वाली। अब्बू की मैं लाडली थी, इसीलिए मेरी हर ख्वाहिश पूरी होती थी, पर नहीं जानती थी कि शादी के बाद मेरी ज़िंदगी एक ऐसा मोड़ लेगी जिसके बाद मैं कभी खुद को महफूज ही नहीं तसव्वुर कर सकूंगी और ज़िंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगी। कॉलेज में मैंने कदम रखा था कि मेरे रिश्ते आने शुरू हो गए। अम्मी अब्बू को वैसे भी मेरी शादी की फ़िक्र लगी हुई थी क्योंकि उन्होंने मेरी बहनों की जल्दी शादी कर दी थी और इसी वजह से इन्हें लगता था कि मेरी शादी भी जल्दी हो जानी चाहिए। पर मैं पढ़ लिख कर अपने ख्वाबों को पूरा करना चाहती थी। मेरा मकसद था मैं टीचर बनूं और बच्चों को इंतहाई प्यार मोहब्बत से पढ़ा सकूं। मेरे नज़दीक जो कमियां स्कूल लाइफ में रह गई थी वो टीचर्स के अदम तवज्जो की बदौलत थी। इसीलिए मैं चाहती थी कि मैं एक ऐसी टीचर बनूं जो बच्चों को इंतहाई प्यार मोहब्बत से इनके नफ्सियात के मुताबिक पढ़ाए ताकि वो पढ़ाई में बेहतर तरीके से दिलचस्पी ले सकें। मैंने अपने इस ख्वाब का जिक्र अपने वालिद साहब से भी किया था और मेरा साथ देने के लिए तैयार थे, पर हर माँ की तरह मेरी माँ को भी मेरी फ़िक्र लगी थी। उन्होंने मेरे लिए रिश्ते देखने शुरू कर दिए। जहाँ ये बात बताती चलूँ कि अब्बू के दो बड़े भाई थे जिन्हें ताया और चाचा कहा करती थी। सबसे बड़े भाई को मैं ताया और इनसे छोटे को मैं चाचा कहा करती थी। ताया जान ने शुरू से ही अब्बू के कान में ये बात डाल दी थी कि मेरे असफर के लिए बीनी ही ठीक रहेगी, जबकि मेरे दिल में ऐसी कोई बात ना थी। मैंने अपने वालिद साहब को साफ और वाज़ेह तौर पर बता दिया कि मैं अफसर से शादी नहीं करूँगी क्योंकि मैं इसे पसंद नहीं करती। वो मुझसे उम्र में कहीं गुना बड़ा है, यानी तकरीबन हमारे दरमियान 5-6 साल का फ़र्क तो लाजमी था। जबकि चचा ने भी अम्मी से रिक्वेस्ट की थी कि बिनिश को हमारी बहू बना दे। इस वजह से इन दोनों भाइयों के दरमियान इख्तलाफ थे। मैंने अम्मी अब्बू को साफ और वाज़ेह तौर पर बता दिया था कि मैं रिश्तेदारों में किसी से शादी नहीं करूँगी। अगर आप किसी एक को भी हाँ कहेंगे तो दूसरे का दिल टूट जाएगा और मैं इस तरह के फसादात वाली शादी हरगिज़ नहीं कर सकती थी। अब्बू मेरी सोच के कायल हो गए थे, लेकिन अम्मी की चौंके चच्ची जान से काफ़ी दोस्ती थी, इसलिए उन्होंने मुझे बुलाकर मेरे कज़न रामिस के लिए मना लिया था। मेरी मंगनी की खबर आम हो चुकी थी, जबकि अभी मैंने खुद फैसला नहीं लिया था। मैंने सिर्फ अम्मी को टालने के लिए रामिस का कहा था और अम्मी अब्बू ने मेरी इस टालने को ही मेरी हाँ समझकर तमाम ख़ानदान में ये बात फैला दी कि बिनिश ने रामिस के लिए हाँ कर दी और असफर के लिए मना कर दिया। ताया जान को इस बात के लिए बहुत बुरा महसूस हुआ था। उन्होंने कुछ कहने की बजाय चुप ओढ़ ली। अब्बू को भी अफसोस हुआ। इन्हें अम्मी की जल्दबाजी पे गुस्सा आया था। इस बात का उन्होंने सदमा ले लिया कि इनका बड़ा भाई इनसे नाराज़ है। वो अम्मी से कहा करते थे कि बेटी को ऐसी जगह नहीं झोंकना चाहिए जहाँ पहले से ही बातों पे मज़ीद इख्तलाफात बढ़ जाएं। पर अम्मी को दामाद के रूप में रामिस के अलावा और कोई बहाता ही नहीं था। रामिस अपने घर का सबसे बड़ा बेटा था और अकलौता था जो अच्छी खासी जॉब करता था। महीने के तकरीबन 60,000 तो आराम से कमा लेता था। इस पर घर के कोई ज़्यादा अखराजात भी नहीं थे। मेरी ज़िंदगी ऐशो आराम में गुजरने वाली थी। इख्तलाफात बढ़ने लगे तो मैंने अम्मी से कहा कि जल्द मेरी शादी का ऐलान कर दे ताकि तमाम लोगों के मुंह बंद हो जाएं। अम्मी ने बाकायदा मंगनी का तो ऐलान किया था, इसीलिए अब दोबारा तोड़ना मेरे बस में बात नहीं थी। अपनी ज़ात को यूँ मौजू बनते देखने के लिए मेरे लिए तकलीफ दा था, इसलिए अम्मी से कह दिया कि आप रामिस और मेरी शादी की तारीख तय कर दें। रामिश और बिनिस का कोई ना कोई चक्कर तो ज़रूर था जो इसने असफ़र को ठुकरा दिया, जबकि सच बात तो ये थी ना मैं रामिस से शादी करना चाहती थी और न ही मैं असफ़र के लिए हाँ कर रही थी।
पर अम्मी की जिद ने मुझे ये दिन दिखाया था। मुझसे पहले मेरे भाई की शादी हो चुकी थी और भाई की बीवी असफर की छोटी बहन थी। इस वजह से भी हमारे घर में इख्तलाफात बढ़ रहे थे, पर भाभी ने खुले दिल से कबूल कर लिया था कि जो इसकी मर्ज़ी होगी वही मेरी मर्ज़ी होगी। बिनिश पर किसी तौर पर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, जबकि बिनिश के फरिश्तों को भी इल्म नहीं था कि इसकी वालदा रामिस से इसका रिश्ता तय कर आई है। अब मेरे पास शादी के अलावा कोई चारा ना था, इसलिए मैंने फसादात से बचने के लिए अम्मी को वाज़ह तौर पर पैगाम दे दिया कि अब मेरी जल्द अज जल्द शादी कर दें। अम्मी ने ऐसा ही किया और पूरे ख़ानदान में ये बात मशहूर हो गई कि जल्द बिनिश और रामिस की शादी होने वाली है। मुझे अपने ख्वाबों के टूटने का बेहद अफसोस था। रामिस मुझसे मोहब्बत करता था, इस बात का अंदाज़ा मुझे मेरी मायों वाले दिन हुआ, जब वो चुपके से मुझसे मिलने आया और मैं अपने कमरे में मायों की दुल्हन बनी उदास बैठी थी। अपने खूबसूरत दिनों को याद कर रही थी जो माँ बाप के घर में इंतहाई शानदार गुजरे थे, जहाँ कोई फ़िक्र और परेशानी न होती थी। और अब मेरी ज़िंदगी बदलने वाली थी। किसी को अपनी ज़िंदगी के हर किस्म के हकूक़ का मालिक बना देना इतना आसान नहीं था जितना कहना आसान था। मैं रो पड़ी थी और अपने कमरे में बैठी इस बात का इंतज़ार कर रही थी कि कब मेरे दिल की खुशी महसूस होगी। इसी वक्त कमरे का दरवाज़ा खुला और रामिस को अपने सामने खड़ा देखकर मैं हैरान रह गई। मेरी नज़रें शर्म से झुक गई। रामिस मुझे देख के मुस्कुराते हुए कहने लगा, तुम्हें देखने के लिए मुझे अपने घर वालों से झूठ बोलना पड़ा। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, जानता हूँ तुम्हारे बारे में ऐसी बहुत सी बातें मशहूर हो गई हैं, लेकिन तुम्हें हासिल करने के लिए मुझे ये सब कुछ गंवारा है। तुम उदास मत होना, तुम्हारा शोर हमेशा तुम्हारे साथ है। इसकी इस तरह की यकीन दहानी ने मेरे अंदर जैसे खुशी की कली खिला दी है और मैं झूम कर रह गई। वो चंद घंटे वहाँ बैठा और मुझसे बातें करते रहा। इस दौरान मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो वाकई एक हीरे जैसा शख्स है जिसे खोकर मैं बहुत बड़ी गलती करने वाली थी। एक दिन पहली बार मुझे अपनी वालदा पर बहुत प्यार आया, जिन्होंने मेरे लिए वाकई एक हीरा चुना था। वो मुझे ज़िंदगी की तमाम खुशियाँ देने की भरपूर कोशिश थी। 2 दिन गुजर चुके थे, मेरे हाथों में मेहंदी लग चुकी थी और मैंने इंतहाई प्यार मोहब्बत से रामिस का नाम लिखवाया था। अब्बू ने मुझे पहली बार मुस्कुराते देखा तो इनके दिल में भी जैसे ठंडक पड़ गई। उन्होंने मुझे अपने पास बुलाकर कहा, बेटा कभी ये मत समझना कि तुम अकेली हो, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। अगर कभी शादी के बाद कोई मसला हो तो हमसे कभी ना छुपाना, बल्कि इसी वक्त बता देना, हम तुम्हारा मसला हल करने के लिए हमेशा पेश रहेंगे। वैसे तो मेरी दुआ है कि ऐसा कोई मसला पेश ना आए और तुम अपनी ज़िंदगी में खुश रहो। अब्बू ने मुझे दुआ भी दी थी और नसीहत भी की थी। भला आखिर वो दिन आ पहुंचा जब मैं दुल्हन बनकर रामिस के घर हमेशा हमेशा के लिए तशरीफ़ ले जाने वाली थी। मैं दुल्हन के लिबास में मौजूद ब्राइडल रूम में बैठी अपनी बारात आने का इंतज़ार करने लगी। वहाँ बैठ कर मेरी कमर दर्द हो चुकी थी, लेकिन खुशी इस कदर थी कि दर्द का एहसास जाता रहा। इसी दौरान बच्चों के चीखने चलाने की आवाज़ आई और फिर पटाखों की आवाज़ आई। तब मैं समझ गई कि बारात आ चुकी है। ढोल की थाप में बारात का इंतज़ार इस्तकबाल किया जाने लगा। ब्राइडल रूम में मौजूद खिड़की से मुझे बाहर का तमाम मंजर दिखाई दे रहा था। मैंने रामिस से चेहरे पर पहली बार इतनी ज़्यादा खुशी देखी थी। वो बार बार हंस रहा था, मुस्कुरा रहा था। तभी मैंने एक हैरत अंगेज़ मंजर देखा था। अपने मुंह पर दुपट्टा ओढ़े एक लड़की आगे बढ़ी और इसने मेरे शोहर को दूध का गिलास दूध पिलाई के लिए पेश किया। उन्होंने बारात के साथ रक्स करते हुए बातों ही बातों में वो दूध का पूरा गिलास पी लिया। इसी लड़की को वापस किया और वो लड़की हाल में आने के बजाय कहीं गायब हो गई। मैंने ये मंजर अपनी आंखों से देखा था, मुझे बहुत अजीब लगा। मैंने सर झटक कर अपनी खुशियों की तरफ अपनी तवज्जो मरकूज कर दी, लेकिन मुझे क्या पता था कि वही लड़की मेरी खुशियों की कातिल हो गई। मेरे शोहर अचानक रक्स करते करते रुक गए। इन्हें गर्मी से महसूस होने लगी। उन्होंने अपनी शेरवानी के बटन खोल दिए। इनकी तबीयत खराब होने लगी थी। इन्हें हाल में लाया गया, मेरे सामने पंखे में बिठाया गया। तबीयत बहाल हुई तो फ़ौरन से निकाह कर दिया गया और रुखसती का शोर मच उठा। तभी अम्मी दूध लेकर आई तो वो हैरान हुआ, आंटी ये दूध तो मुझे पहले भी किसी ने दिया था, आपने नहीं भिजवाया था? अम्मी ने फटी फटी निगाहों से मेरी तरफ देखा। नहीं बेटा, मैंने नहीं भिजवाया, ये तुम्हारी जोजा ने भिजवाया होगा। क्या पता इसे बहुत शौक हो अपने शोहर का इस तरह इस्तकबाल करने का। मेरी एक कज़न ने चुटकुला छोड़ा तो मैं खौफजदा निगाहों से अपने शोहर की तरफ देखने लगी। वो मंजर वक्त भी मुझे अजीब सा लगा। मैं हैरान रह गई, दिल घबराने लगा। मेरे शोहर की तबीयत के पेश नज़र शादी की तमाम रस्मात को कैंसिल करके जल्द अज जल्द मेरी रुखसती का ऐलान कर दिया गया और मैं रोते हुए अपने माँ बाप की दुआओं के साथ अपने कमरे में आ गई। मेरे शोहर जैसे ही कमरे में कदम रख कर मेरे पास आए तो इन्हें खून की एक बहुत बड़ी उल्टी हुई और मैं अपनी जगह साकत रह गई। उन्होंने मेरे हाथों में दम तोड़ दिया। वो मेरी तरफ देख भी ना सके, ना मुस्कुरा सके और हमेशा हमेशा के लिए आंखें बंद करके इस दुनिया से रुखसत हो गए। मैं फटी निगाहों से ये मंजर देखती रही और फिर इसके बाद मैंने ऊंचा ऊंचा रोना शुरू कर दिया। मैंने इन्हें वहीं पलंग पर लटाया, अपने खून आलूद हाथों को देखा
मेरा पूरा अरूसी लिबास खून आलूद हो चुका था। मैं भाग कर बाहर आई तो तमाम घर वाले मुझे देखकर हैरान थे। क्या हुआ, क्या हुआ, मेरे बेटे को तुम रो क्यों रही हो? मैंने अंदर इशारा किया तो वो लोग भाग कर वहाँ आए और फिर दूसरे इलम में चची जान ने मुड़कर मुझे एक जोरदार थप्पड़ रसीद किया। नामराद, तेरे आने से मेरा बेटा चला गया, ज़रूर तेरी कारस्तानी होगी। मुझे तो पहले ही पता था कि तू असफर से शादी करना चाहती है, लेकिन मेरा ही दिमाग ख़राब था जो मैं तुझे अपनी बहू के रूप में देखना चाहा। मुझे क्या पता था कि तू डायन है, कातला है। तूने मेरे बेटे को कत्ल कर दिया, तेरे हाथ खून से रंगे हुए हैं। चची जान सीने पे हर मार कर रो रही थी और मैं हैरानी से ये मंजर देख रही थी। मेरा दिमाग जैसे सुन्न हो गया। मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने रोते हुए बुलंद आवाज़ में अपनी गवाही देना चाही। मैं बेगुनाह थी, मैं तो रामिस से मोहब्बत करने लगी थी, भला मैं इनसे क्यों कत्ल करती? चचा जान ने भी आगे बढ़कर मुझ पर थप्पड़ों की बरसात कर दी थी। अगर तुझे मेरा बेटा पसंद नहीं था तो इसी वक्त मना कर देती। असफर के लिए तो तूने मेरे बेटे को मार दिया। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने इसी वक्त पुलिस को फ़ोन करके बुला लिया था और पुलिस ने मुझे गिरफ्तार कर लिया। मैं अपनी सफाइयाँ देती रही, लेकिन किसी ने मेरी एक ना सुनी और यूँ सब ने मुझे कातिल करार दे दिया गया। मैं जेल में आ चुकी थी, दुल्हन के लिबास में। मैं जेल में मौजूद थी। किसी ने मुझे लिबास तब्दील करने का वक्त भी ना दिया। मैं रोती रही, चिल्लाती रही। मुझ पर कत्ल का मुकदमा दर्ज हो चुका था। मेरे घर वालों ने भी मुझसे आंखें फेर ली, क्योंकि इन्हें भी लगता था कि शायद मैंने ये कदम उठाया है। मैंने रो रो कर इनके सामने हाथ जोड़े, इन्हें अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाना चाहा, लेकिन सब ने आंखें फेर ली थी। अब्बू ये सदमा बर्दाश्त ना कर सके और दुनिया से चले गए। अम्मी बेवा हो चुकी थी, भाई ने भी मुझसे तलक तोड़ दिया। ऐसे में मेरा घराना तो मुकम्मल बर्बाद हो गया था। मैं खुद बर्बाद हो गई थी। शादी की पहली रात ही बेवा हो चुकी थी, लेकिन किसी को मेरा दर्द नज़र नहीं आ रहा था। चची जान को सिर्फ अपना दर्द अजीज था, इनका जवान बेटा था। मुझे मालूम है कि ये दर्द बहुत बुरा होता है। जवान मौत इंसान को वक्त से पहले बूढ़ा कर देती है, पर इसमें मेरा क्या कसूर था? मुझे भी तो दुख पहुंचा था, मेरा भी तो शोर दुनिया से रुखसत हुआ था। लेकिन इन तमाम लोगों ने मिलकर मुझ पर इल्ज़ाम तराशी शुरू कर दी और मुझे जेल तक बंद कर दिया। इनके नज़दीक इन सब के पीछे मैं और असफर मिले हुए थे। मुझे शादी में असफर कहीं नज़र नहीं आया था, ना इसने मुझे बचाने की कोशिश की थी। मुझे हैरत हुई कि ये सब क्या हो रहा है। मैं वहीं जेल में बैठी अपनी बेगुनाही का इंतज़ार करती रही कि कब मैं बेगुनाह साबित होंगी और कब अल्लाह पाक मुझे यहाँ से निकालेगा। ज़िंदगी यूँ रुख बदलेगी, मैंने कभी भी नहीं सोचा था। मैं रोकर हर रात अल्लाह से दुआ करती कि या अल्लाह मेरी बेगुनाही साबित हो जाए और मैं यहाँ से छूट कर निकल जाऊँ। न जाने किसकी बद्दुआ लग गई थी, मुझे शायद असफर की बद्दुआ लग गई थी। मुझे आज तक ये मालूम नहीं हो सका कि मेरे शोहर का कातिल कौन था। हैरत अंगेज़ तौर पर ये बात हुई कि मुझे जेल में ख़त मिलना शुरू हो गए थे, जिसमें इस बात का इतराफ़ किया जाता कि मैंने तुम्हारे शोहर को मारा है, मुझे माफ़ कर देना। मुझे इस बात का बहुत अफसोस है, पर इससे कहीं ज़्यादा अफसोस मुझे इस बात का है कि तुम मेरी वजह से जेल की सलाखों के पीछे हो। लिखने वाला इसमें अपनी जिन्स ज़ाहिर न करता था, बस ऐसी बातें लिखी होती जिससे गुमान होता कि आया ये लड़के का ख़त भी हो सकता है और लड़की का भी। मैंने अदालत में सबूत के तौर पर वो ख़त जमा करवाने की कोशिश की थी, लेकिन जेल में शायद तमाम लोग रिश्वत खा के बैठे हुए थे। उन्होंने मेरा ख़त आला अदालत तक पहुँचने से पहले ही बर्बाद कर दिया था। अब तो जेल में वो ख़त मिलना भी बंद हो चुके थे। मैं तकरीबन 2 साल तक जेल की सलाखों के पीछे रही। जेलर एक इंतहाई बदकिरदार शख्स था। वहाँ मौजूद जेल की हर रुत को इसने बर्बाद करने की कोशिश की थी। मुझे नहीं मालूम था कि मेरी बारी भी जल्द आने वाली है और वो मुझे पूरा बर्बाद करके छोड़ेगा। अफसोस इस वक्त हुआ जब रात के आखिरी पैर मैंने जेलर को अपनी अंधेरी कोठरी में पाया था और फिर इसके बाद इसने मेरी इज्जत पर हमला किया। मैं चीखी चलाई, पर वहाँ मेरी मदद के लिए कोई भी नहीं आया। मैं इस 25 साल की उम्र में मैंने अपनी ज़िंदगी के इंतहाई बुरे दिनों का सामना कर लिया था। इस दिन मैं शिद्दत से रोई थी और गिड़गिड़ा कर अल्लाह से दुआ मांगी, या अल्लाह मेरे सब्र की हद मुकम्मल हो चुकी है। मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया, मेरे सब्र का जाम छलक गया। अब मैं मज़ीद जहाँ नहीं रहना चाहती। या अल्लाह कोई रास्ता निकाल दे, मुझे यहाँ से बाइज़्ज़त बरी कर दे। सुबह होते ही ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू किया तो जिस जेलर की ड्यूटी ख़त्म हुई थी इसने मुझे डराने धमकाने की कोशिश की। अब मेरे पास खोने के लिए कुछ भी ना बचा था, वाहिद इज़्ज़त थी जो मैं खो चुकी थी। इसलिए मैंने इसकी बात को खातिर में लाए बगैर ज़ोर ज़ोर से वहाँ मौजूद लोगों को कहना शुरू कर दिया कि इस शख्स ने मेरी इज़्ज़त पे हमला किया है और मुझे लूट लिया है। मैं इस पर मुकदमा दर्ज करना चाहती हूँ। खुशकिस्मती ये थी कि वहाँ मौजूद कांस्टेबल रहमदिल था। इसने मेरी बात आला काम पर पहुँचा दी, पर मैं नहीं जानती थी कि मेरी आवाज़ सिर्फ जेल तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि इसकी बाज़गश्त दूर दूर तक होगी। मौजूद कत्ल की मुलज़िमा पर जेल की तरफ से हमला। जेल में मौजूद मुलज़िमा की इज़्ज़त जेलर ने लूट ली। मुझे बाकायदा तौर पर वहाँ कमरे में बुलाकर ये खबर सुनाई गई थी। मैंने अपने सर को झुका दिया।
यही सच था, अब मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं था। इज्जत तो चली गई थी, अब अगर ये इज्जत दोबारा उछल जाती तो इसमें क्या ही बुरा था। मीडिया के लोग आकर मुझसे बयान ले रहे थे जब मैंने हाथ जोड़कर वहाँ लोगों से कहा था कि मेरे केस में दोबारा से नज़रसानी की जाए। मैंने अपने शौहर को नहीं मारा। ये बात जंगल की आग की तरह पूरे मीडिया में फैल गई। पहले नए सिरे से मेरे केस को देखा जाने लगा। मेरी शादी की वीडियो को देखा गया जिसमें वाज़ह तौर पे पता चला गया कि मेरे शौहर को जहर देकर मारा गया और वो औरत जो मुंह पर दुपट्टा बांधकर मेरे शौहर को दूध का गिलास दे गई थी, दरअसल इस दूध में ही जहर मौजूद था। मैं बाइज्जत बरी हो गई थी, लेकिन जो खबर इस खबर से पहले चल चुकी थी कि जेलर ने मेरी इज्जत लूट ली है, मेरे घर वालों ने मुझसे लतलकी का ऐलान कर दिया था, अम्मी भाई के रहमो करम पर थी, कैसे मुझे अपने घर में कबूल करती। मुझे लगा था कि मेरी ज़िंदगी आसान हो गई है, लोग मुझसे माफ़िया मांगे कि मुझसे हमदर्दी करेंगे और मुझे एक बार फिर अपने घर में पनाह मिल जाएगी। लेकिन मैं बेहद गलत थी। जो कुछ मैंने सोचा था सब कुछ इसके बरक्स हुआ। चचा चाची ने मुझसे माफ़ी तो क्या ही मांगनी थी, उन्होंने तो मुझे अभी तक कातला ही करार दिया। उन्होंने मुझे साफ तौर पर कह दिया कि चाहे तुम बेइज्जत बरी हो चुकी हो, तुम्हारा केस खुल चुका है, लेकिन हमारे बेटे की मौत के जिम्मेदार तुम ही हो। तुम इसकी ज़िंदगी में आई, तुमने ही इसे दुनिया से रुखसत कर दिया, हम तुम्हें क़यामत तक माफ़ नहीं करेंगे। मैं रो पड़ी थी। अब मैं इनके सामने कोई वजाहत नहीं देना चाहती थी कि हर वजाहत बेकार हो चुकी थी। जिसे ना समझना था वो समझ कर भी ना समझ रहे थे। इसमें भला क्या कर सकती थी। मैं इंतहाई लुटे पुटे अंदाज में अपने घर की तरफ गई तो अम्मी ने मुझे साफ और वाज़ह तौर पर बता दिया कि अब तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं। अगर तुम बेइज्जत बरी होकर आ जाती तो हम तुम्हें अपने घर में रख लेते, लेकिन तुम्हारी इज्जत लूटे जाने के हर तरफ चर्चे मौजूद हैं। हम तुम्हें दोबारा कबूल नहीं कर सकते। हम ऐसी लड़की को कैसे दोबारा अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें जिसकी इज्जत के लुट जाने की खबर चारों जानब फैल चुकी है। ऐसे में तुम खुद ही बता, हम कैसे तुम्हें अपने घर में रखें। ये कहकर अम्मी रो पड़ी थी और मैं समझ गई कि अम्मी के अल्फाज नहीं हैं बल्कि भाई के अल्फाज हैं जो अम्मी के असबर किए हुए हैं। वरना मैं अच्छी तरह जानती थी कि वो मुझसे बेहद मोहब्बत करती हैं और मुझे यूँ नहीं छोड़ सकती। लेकिन अम्मी को भी अपनी 2 वक्त की रोटी के लाले पड़ चुके थे और मैंने इन्हें इस बात के लिए माफ़ कर दिया था। मैंने सोच लिया कि अपनी ज़िंदगी में खुद आगे बढ़ूंगी और ये फैसला कर लूँगी। मुझे अब इन तमाम लोगों को बुलाकर अपनी ज़िंदगी नए सिरे से शुरू करनी थी। पर इस वक्त मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी मौजूद नहीं थी। तालीम भी मैंने कुछ खास हासिल नहीं की थी क्योंकि शादी का शोर मच उठा था। पर अब मैं क्या करती। इसी कश्मकश में मैं वहाँ सड़क पर बैठी अपनी किस्मत रो रही थी कि मेरे बराबर में एक फ़कीर आकर बैठ गया और मुझे देखकर मुस्कुराने लगा। इसकी मुस्कुराहट देखकर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि एक बार फिर से मैं अपनी इज्जत खोने वाली हूँ। मैंने फ़कीर से दूर जाना मुनासिब समझा तो वो मेरे पीछे आ गया और कहा, बिनिश, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम किस कर्ब से गुजर रही हो। जिस कर्ब से तुम गुजर रही हो, मैं तुम्हारे इस दर्द को ख़त्म करना चाहता हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। फ़कीर की ज़ुबानी ये अल्फाज सुनकर मैं पत्थर की हो गई। इस वक्त मुझे कुछ समझ ना आया। मुझे किसी सहारे की तलाश में थी। मुझे छत की ज़रूरत थी। 2 वक्त की रोटी के लिए मैं तरस रही थी। जेल से छोटे 2 दिन हो चुके थे और मैंने ढंग का खाना भी नहीं खाया था। फ़कीर ने मुझे खाना दिया था। मैंने वो खाना हलक में आंसू के गोले के दरमियान उतारा था और तब मैंने इस फ़कीर को देखकर फ़ौरन से हाँ कर दी। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। मेरी ये बात सुनकर इस फ़कीर ने मोहब्बत से मेरी तरफ देखा था। ठीक है, फिर कल मैं तुम्हें अपने साथ ब्याह कर अपने घर ले जाऊँगा। फ़िलहाल तुम इस झोंपड़ी में गुजारा करो। वो मुझे एक झोंपड़ी में ले आया था। कल तुम्हें शादी का जोड़ा भी दे दिया जाएगा, फिर मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊँगा। तुम्हें कोई इतराज़ तो नहीं ना? तुम एक बार फिर से सोच लो। फ़कीर की मैली कचहरी दाढ़ी और इसका मैला बदन देखकर मुझे लगा कि मैंने गलत फ़ैसला किया और फिर अपने सर पर खुले आसमान को कब तक मौजूद रहने देती। अगर वो गरीब था तो गरीब ही सही, मैं इसके साथ भीख मांग कर गुजारा कर लूँगी। ज़िंदगी कभी नहीं सोचा था कि शहज़ादियों की तरह ज़िंदगी गुजारने के बाद अपनी ज़िंदगी मुझे भीख भी मांगनी पड़ेगी। इस बात के लिए मैंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। अब आगे की ज़िंदगी भी आसान होगी। मुझे सुबह ही सुबह एक औरत के हाथों शादी का जोड़ा भिजवा दिया गया। शादी का जोड़ा देखकर मेरी आंखें हैरत से फैल गई। ऐसा खूबसूरत जोड़ा आज से पहले मैंने कभी नहीं देखा था। इतना प्यारा जोड़ा मैं पहनूंगी, ऐसा जोड़ा तो मैंने रामस और अपनी शादी के मौके पर भी नहीं पहना था। मैंने लिबास से तन किया तो एक गाड़ी मुझे लेने आ गई। गाड़ी कहाँ से आई? मैं अपने जहन को तमाम सोचों से आज़ाद कर दिया। सबसे पहले इस गाड़ी में पार्लर तैयार होने के लिए चली गई थी। वहाँ मुझे खूबसूरती से तैयार किया गया और फिर गाड़ी एक अजनबी जगह ले गई जहाँ मुझसे इजाब व कबूल के लिए इजाज़त तलब कर गई। मैंने अपने शौहर को निकाह में कबूल किया और अपनी ज़िंदगी इसके नाम कर दी। ये जाने बगैर कि कौन है कैसा है, ज़िंदगी इतनी तल्ख हो चुकी थी, इसीलिए मैंने फ़कीर की पेशकश कबूल कर ली। लेकिन ये देखकर हैरान रह गई कि गाड़ी एक बंगले के पास रुक गई। मेरे शौहर ने मुझसे यही कहा था, तुम मेरे घर आ जाना।
मैं तुम्हारे सामने तुम्हें कबूल कर चुका हूँ और ऐसा ही होगा। उन्होंने मुझे रिकॉर्डिंग भेज दी। हैरत अंगेज तौर पर मैंने इन्हें दूल्हा बने हुए नहीं देखा। अगर देख लेती तो शायद मैं इन्हें कभी अपने शोहर के रूप में कबूल ना करती। थोड़ी देर बाद कमरे का दरवाज़ा खुला और मेरे सामने मेरे शोहर की हैसियत से असफर खड़ा था। मेरे हाथ पैर कांपने लगे। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने असफर से पूछा। असफर ने फंसते हुए मेरी तरफ देखा। तुम्हारा शोर हूँ तो मैं ही तुम्हारे कमरे में आऊँगा ना? ये सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। मैं तुम्हें अपने शोहर नहीं मानती। चले जाओ जहाँ से। तुम्हारी वजह से मेरा इतना इल्ज़ाम लगा। मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। मुझे आज़ाद कर दो। मैं तुम्हारे साथ कैसे रह सकती हूँ? मेरी जान हलक को आ गई थी। मैं बेहोश हो चुकी थी। अगले दिन जब होश आया तो असफर मेरे सामने शर्मिंदा खड़ा था। मैं मानता हूँ कि मैं कसूरवार हूँ। मैंने ही रामस को जहर देने की कोशिश की थी, लेकिन खुदा का करना ये हुआ कि मैंने जिस किराए के कातिल को खरीदा था, मैंने इसे फ़ोन करके मना कर दिया था। इसने मेरी बात मान ली थी। मेरे ऊपर से ज़मीर का एक बोझ हट चुका था। मेरा ज़मीर मुझे बार बार मलामत कर रहा था। वो रोते हुए मुझे अपनी कहानी सुनाने लगा। लेकिन फिर वो हुआ जिसका मैंने तसव्वुर भी ना किया था। जिस किराए के कातिल को मैंने रामस को मारने के लिए खरीदा था, वो कोई और नहीं बल्कि रामस की वो गर्ल फ्रेंड थी जिसे रामस छोड़ चुका था। और ये बात बर्दाश्त ना कर सकी और इसने रामस को लाख मना करने के बावजूद भी जहर दे दिया। कहीं ना कहीं मैं ही कसूरवार था। मैं इस हकीकत को कबूल कर चुका था कि तुम अब रामस की हो चुकी हो, लेकिन शायद इसने इस हकीकत को कबूल नहीं किया। वो मेरी पुरानी दोस्त रह चुकी थी। मैंने इसका इंतखाब भी इसीलिए किया, पर मुझे क्या पता कि वो रामस की नफ़रत में इस हद तक आगे चली जाएगी। मुझे लगता था कि मेरी वजह से तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। तुम्हारी ज़िंदगी में जितनी मुश्किलात आई मेरी वजह से आई। मैं अपना घर बार सब कुछ छोड़ चुका था। मेरा जहनी तवाज़ुन जैसे अपनी जगह पर ना रहा। जिस दिन मुझे ये पता चला कि तुम जेल से रहा होकर वापस आ रही हो, तब मैंने सोच लिया कि तुम्हें इसी वक्त रास्ते में घेर कर शादी की पेशकश करूँगा। अगर तुमने शादी की पेशकश कबूल कर ली तो मैं तुम्हें ज़िंदगी की तमाम खुशियाँ दे दूँगा। अगर तुमने शादी की पेशकश कबूल ना की तो इस दिन मेरी ज़िंदगी का भी आखिरी दिन होगा। वो मेरे पास खड़ा मेरे आंसू पूंछ रहा था। अगर घर वालों को पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगे कि वाकई मैं इसकी कातला हूँ। अगर तुम सच में मुझसे मोहब्बत करती हो तो ये मुकदमा हमेशा हमेशा के लिए मुझ पर से ख़त्म कर दो और रामस के कातलों को गिरफ्तार करवाओ, तभी मेरे दिल को सुकून पहुंचेगा। असफर ने मुझसे वादा किया था कि अगले ही दिन वो अपनी गवाही लेकर थाने पहुंच चुका था। थाने वालों ने इसकी गवाही पर रामस की गर्लफ्रेंड को गिरफ्तार कर लिया और जो मेरी ज़िंदगी के वो इंतहाई मुश्किल दिन जो मैंने काटे थे, असफर की सूरत ख़त्म हुए थे। अब मैं इसके साथ खुशो खुरम ज़िंदगी गुजार रही हूँ। माजी को भूलकर हमने वो शहर तक छोड़ दिया जहाँ हमारे रिश्तेदार रहते हैं, ताकि हम दोनों की ज़िंदगी में कोई मुश्किल दोबारा ना आए। मैं एक बेटे की माँ बन चुकी हूँ और मैंने सोच लिया है कि मैं इसकी तरबियत ऐसी करूँगी कि इसे ज़िंदगी में दोबारा असफर और रामस की तरह मुश्किल का सामना ना करना पड़े। मैं इसे औरत की इज़्ज़त करना सिखाऊंगी और इसे ये सिखाऊंगी कि औरत का एक बार मना करने का मतलब मना करना होता है। इस पर किसी को कत्ल नहीं कर सकता। असफर भी मुझे देख देख के जीते हैं। उन्होंने ही मेरी ज़िंदगी में दोबारा आसानी पैदा की। इस बात के लिए मैं इनकी जितनी शुक्रगुजार रहती कम था। हम दोनों ने तमाम इख्तलाफात और माजी की तमाम तलखियों को भुलाकर अपनी ज़िंदगी का आगाज़ कर दिया था और हम दो बच्चों के वालिदैन बन चुके थे। हमने अपने बच्चों को हर किस्म की बेहतरीन तरबियत फराम की थी और ये साबित कर दिया था कि ज़िंदगी में अगर मुश्किल आती हैं तो फिर अल्लाह ताला आसानियाँ भी पैदा करता है। और मेरी ज़िंदगी तो इस बात की सबसे बड़ी मिसाल थी।